The 44th edition of India International Trade Fair 2025 highlights the potential of aspirational India as an emerging economic power of the world. Inspired by Viksit Bharat at 2047 vision of the Honorable Prime Minister, with focus on theme Ek Bharat Shresth Bharat, the event also features a globally confident, technologically advanced, and economical resilient country. Such events are imperative to make a self-reliant India, pointed out by the Honorable Minister of State for Commerce and Industry and Electronics and Information Technology, Shri Jitin Prasad, while inaugurating IITF 2025 at a well-attended colourful function held at Bharat Mandapam, New Delhi. Unfortunately, Maharashtra and Uttar Pradesh were not able to make it, but nonetheless, we felicitate them as well. Request our Honorable Minister to kindly felicitate our focus state, Jharkhand. Request our Honorable Minister to kindly felicitate our partner states as well, Bihar, to build a Viksit Bharat where growth is inclusive and opportunities shared. And no example shines brighter than the India International Trade Fair. ट्रेड से टेक्नोलॉजी तक ऐसे हर आयोजन के लिए ये विशाल परिश्रम और ये विशाल परिसर ये भारत It's the people who keep this legacy alive. A woman who brought her craft to the capital, a startup that turned an idea into success, and MSMEs that found their market and voice, all under one roof. IITF is a celebration of India's self-reliance and diversity, where culture meets commerce, flavors fill the food pavilions, and business connects the heart of Bharat with the world. The legacy Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra and Rajasthan as partner states and Jharkhand as focus states. IITF 2025 celebrates the Swadeshi spirit, the pride of creating for our own and for the world beyond. With world-class infrastructure, digital access, security, logistics and mobility, Bharat Mandapam ensures every participant, delegate and visitor experiences comfort, convenience and confidence. तो IITF के लिए जो भी ITPO ने हमें फैसिलिटी दी है वो बहुत बढ़िया दी हैं। हम बचपन से इस ट्रेड फेयर में आते थे एक विजिटर की तरह और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म भारत में हमें कहीं नहीं मिल सकता जो हमारा प्रोडक्ट और ब्रांड को डिस्प्ले कर पाए। Come, be a part of this journey where every handshake builds a partnership, every stall tells a story and every visitor witnesses the spirit of a new Bharat. Join IITF 2025, a celebration of India's craft, culture and commerce at Bharat Mandapam from 14 to 27 November 2025. Yes, ladies and gentlemen, IITF is truly an amazing annual magnum opus that has been deeply etched in our memories. Moving ahead now, ladies and gentlemen, we have the privilege of requesting our Honorable Minister of State for Commerce and Industry and Electronics and Information Technology, Shri Jitin Prasad, to kindly deliver the welcome address, the inaugural address and formal... जो यहाँ हम लोगों के बीच में प्रारंभ होने वाला है उसके इनॉग्रल उसमें आने का अवसर भी मिला और आप लोगों से अपनी बात रखने का समय भी और अभी जिनको आपने सुना हमारे चेयरमैन ITPO श्री नितिन कुमार यादव जी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान श्री आलोक गुप्ता जी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज श्री कुंदन कुमार जी बिहार के, हालांकि इनका तो योगदान कम ही रहा होगा
मगर बिहार वालों के लिए जोरदार ताली बजा दी। The Honorable Minister mentioned that under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, India has emerged as a global brand synonymous with innovation, resilience, and growth. He noted that India's rising stature on the world stage is a testament to the country's strengthened economic fundamentals, robust policy frameworks, and expanding global partnerships. He emphasized that this transformation has positioned India as a trusted hub for trade, investment, and opportunity, reinforcing its role as a driving force in the global economy. फेयर देखते हुए आ रहे हैं, मगर जब ये जैसे कि अभी आपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुना कि ये भारत मंडपम जैसे आइकॉनिक बिल्डिंग में हो रहा है, तो ये इसके स्टेट फेयर के और चार चांद लग जाते हैं और दर्शाता है कि ये नया भारत का आगाज है और ये नई भारत की सोच है जो साकार होते हुए दिख रही है, जहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास इवेंट्स इस भारत मंडपम जैसे जो ये बन के तैयार हुआ है हमारी आंखों के सामने, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बच्चे तो इतना नहीं जानते होंगे, मगर जिन्होंने पुराने वाले एग्जीबिशन देखे और आज देखेंगे वो समझ सकते हैं भारत कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और कहाँ से कहाँ हम पहुँच गए हैं कि हम विश्व पटल पे अपनी छाप रखने के लिए पूरे देश और दुनिया में डंका बज रहा है। तो जैसे कि अभी हमने ये ट्रेड फेयर में ये थोड़ी सी फिल्म भी देखी और प्रधानमंत्री के कुछ शब्द भी सुने, तो ये ट्रेड और ये ट्रेड एग्जीबिशन यही आने वाले समय में और ये भारत का एक रास्ता बन रहा है जो विकसित भारत की परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोची है 2047 तक, वो इन्हीं और ऐसे ही इवेंट्स और ऐसे ही लोगों का देश और दुनिया का जो केंद्र बनेगा भारत, जो यहाँ आज हम लोग देख रहे हैं कि जो बताया गया कि कितने राज्य, कितने मंत्रालय, कितने देश, कितने छोटे छोटे हमारे एमएसएमईज और देश की जो हुनर रखते हैं, कला रखते हैं, क्राफ्ट्समैन से लेके मॉडर्न भारत की जो तस्वीर है और इनोवेशन की तरफ जो बढ़ रही है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो सब चीज़ का समागम ये इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आने वाले समय में कुछ दिनों में आपको दिखेगा, जो अगले 2 हफ्ते ये प्रदर्शनी लगेगी। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो बिल्कुल प्रधानमंत्री जी की मंशा अनुरूप जो विकसित भारत की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं, ये भारत की शक्ति का भी प्रदर्शन है। यहाँ एमएसएमईज तो मैं अगर शुरुआत करूँ तो एक बहुत बड़ी देन उनकी ट्रेड में है, हमारी जीडीपी में है, नौकरी में है और लोगों का भारत को आत्मनिर्भर बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान है। तो जो हम लोग बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, वो हमारे जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो है एमएसएमईज जिन्हें कहते हैं, उनका यहाँ प्रदर्शनी भी देखने को मिलेगी और जानकारी भी मिलेगी और उनको और आगे कैसे प्रोत्साहन दिया जा सकता है, वो ऐसे ही इवेंट्स में उनको वो हैंड होल्डिंग, वो पहुँच, वो लोगों से संपर्क और देश और दुनिया में अपनी कला की प्रस्तुति ये देखने को मिलती है। भारत का जहाँ तक सवाल है, वो मैं कह सकता हूँ कि जो वाणिज्य मंत्रालय जिसके अधीन आईटीपीओ भी आता है, उसमें इतने बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं और प्रयास किए जा रहे हैं कि देश दुनिया में हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि बड़े बड़े विकसित देशों से बराबरी से आज भारत बात करता है। वो जमाने लग गए जब हम दब के बात करते थे और ये 140 करोड़ की जो जनता है हमारी, ये सिर्फ जनसंख्या नहीं, ये वो जनता है जिसे एस्पिरेशनल इंडिया कहते हैं, जो खर्च करने में, जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहती है, जो अपने जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही है। और ये सिर्फ मैं शहरों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं गांव तक की बात कर रहा हूँ कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ भारत वास करता है, वहाँ पर भी परिवर्तन दिखाई देने को मिल रहा है। ये नए भारत में मोदी जी के नेतृत्व में
जो एस्पिरेशनल इंडिया है, हर घर में एसी, हर घर में फ्रिज, हर घर में वॉशिंग मशीन, तमाम ऐसी चीज़ों की लोग सोच रख रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी मार्केट बन के भारत उभरा है। तो इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि बाकी जो विकसित देश भी हैं वो भारत को देखते हैं कि इतना बड़ा मार्केट है, तो हम भी उनसे बराबरी से बात करते हैं और कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स ही भारत में आएंगे। कोई रिजेक्ट माल वाले जमाने खत्म हो गए कि जो सेकेंड हैंड और गड़बड़ माल होता था एक जमाने में भारत में भेज दिया जाता था भारत की जनता के लिए, मगर वो दिन लद गए और आगे हम लोग बड़ी मजबूती से बढ़ रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, आज हम कह सकते हैं इंडिया जो है वो स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, टैलेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हमारी तरह यहाँ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो एक ऐसी चीज़ है जो जैसे लोग सोचते थे एक ज़माने में कि मोबाइल फ़ोन तो चंद लोगों के लिए होगा, मगर वो घर घर पहुंच गया। और उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हम लोगों के जीवन में बहुत जल्दी इतना पहुंच जाएगा कि आपके उसके बिना आप कुछ कर नहीं सकते। तो मेरा ये आपसे सुझाव भी है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी तो तैयार हो गई है, मगर हमारे जितने बाकी लोग, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो आम जनता हो, चाहे हमारे जो यहाँ क्राफ्ट्समैन और ट्रेड में जो आप यहाँ प्रदर्शनी लगाए हैं, उनको भी मैं सुझाव दूंगा, जल्द से जल्द अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी से लैस करिए, क्योंकि भारत आगे बढ़ चुका है और इसमें हम किसी से पीछे रहने वाले नहीं हैं। सेमीकंडक्टर, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम कह सकते हैं कि भारत की ग्रोथ स्टोरी। और जहाँ तक ट्रेड का सवाल है, हमारा ये पीएम गति शक्ति जो नेशनल मास्टर प्लान है, उसका यहाँ एक इसी प्रांगण में एक सेंटर भी है। मैं चाहूँगा कि आप लोग उसका यह प्रदर्शनी यहाँ भी देखेंगे, मगर हमारे पीएम गति शक्ति एक्सपीरियंशियल सेंटर जो यहाँ पे ही है, इसी प्रांगण में है, उसको आप ज़रूर जाके देखें। कैसे विभिन्न मंत्रालयों को हम लोग एक करने का प्रयास कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये ना हो जो पहले हम लोग देखते हुए आए हैं कि एक विभाग सड़क बना रहा है और दूसरा विभाग वो सड़क खोद के उस पर पाइपलाइन डाल रहा है, फिर वो मरम्मत हो जा रही है तो तीसरा विभाग उसमें केबल डाल रहा है। तो तमाम चीज़ें, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन, चाहे वो रेलवेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स हो, एयरक्राफ्ट हो, तमाम चीज़ें, इन्वायरमेंट की जो चीज़ें हैं, वो सभी ये पीएम गति शक्ति के उससे हो रहा है। आज हम कह सकते हैं कि हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यूके और एफ्टा, जो स्विट्जरलैंड और 4-5 और देश हैं, उनसे हो चुका है। तमाम बातें यूरोपियन यूनियन, न्यूजीलैंड, ओमान से विस्तृत चर्चा हो रही है और जल्द से जल्द मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ से भी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे। भारत की एक्सपोर्ट और आर्थिक शक्ति तो दिखाई दे रही है, मगर साथ ही साथ भारत की असली शक्ति तो हमारे अंदर ही है, और वही आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना है, जो हम कह सकते हैं हमारी देश की जनता इतनी बड़ी मार्केट है और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और इतनी बड़ी खर्च करने की क्षमता रखता है कि हमें किसी देश पे निर्भर होने की आज जरूरत नहीं है। ये भारत की शक्ति है और भारत की जनता की शक्ति है, जो इस लैस हो गई है, इस लायक हो गई है, उसके पास स्पेंडिंग पावर आ चुका है और तमाम ऐसी चीज़ें कि मैं कह सकता हूँ भारत, हम मोबाइल्स में इतने सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं। हमारे ये भारत मार्ट दुबई में खुल चुका है, जो हमारे लोग हैं वहाँ तक अपनी सामग्री बेचने के लिए, प्रदर्शनी लगाने के लिए तमाम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है नितिन यादव जी कि यहाँ पे पहली बार डिफेंस पवेलियन का फिर से यहाँ पर 10 साल बाद डिफेंस पवेलियन लग रहा है और उसमें जाके देखिएगा भारत की शक्ति, भारत की आत्मनिर्भर जो हम लोगों की परिकल्पना है, उसकी देन कि हम खुद ही हथियार बनाने के लिए आज तैयार हैं और बना रहे हैं, और विश्व भर में हम लोग कोई किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं और ये यहाँ की जो थीम रखी है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत, यही यहाँ की इसकी जो आपने थीम रखी है, इसमें यही दर्शाता है कि सभी लोगों को साथ लेके और सभी वर्गों को साथ लेके चलना है, क्योंकि तभी जाके भारत की चंद लोग आगे बढ़ जाएं, किसी का उद्योग चमक जाए, उससे भारत का वो नहीं हो पाएगा।
मैं चाहता हूं और ये सोच है सरकार की कि सभी लोग, छोटे छोटे उद्योग, एक एक व्यक्ति, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो अपना कार्य कर रहा हो, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, सभी देश सामूहिक रूप से आगे बढ़े, तभी वो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना पूरी होगी और तभी भारत सफल हो पाएगा। तो यही हम लोगों का प्रयास है। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पर विभिन्न राज्य, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान पार्टनर स्टेट्स हैं और यहाँ हमारे जो विश्व भर से जो हमारी कंट्रीज आई हैं उसमें चाइना, थाईलैंड, यूएई, मलेशिया, ये ऐसे देश हैं, स्वीडन, टर्की, ईरान, साउथ कोरिया, इजिप्ट, लेबनान, रिपब्लिक ऑफ ट्यूनीशिया, टिबेटन चेंबर ऑफ कॉमर्स, सभी का यहाँ इस ट्रेड फेयर में भागीदारी है। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग ये निर्णायक दौर से जो देश गुजर रहा है, जिसमें हम लोग जहाँ विश्व भर में जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो हैं उसमें अस्थिरता बहुत, अनस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी है, मगर भारत ही एक ऐसा देश बन के उभरा है जहाँ सरकारें स्थिर हैं, जहाँ खुद आपने देखा है प्रधानमंत्री जी तीसरी बार, एक ही सरकार तीन बार जीत के आई और उस जीत के बाद जो राज्य भी आए उसमें चाहे आप ले लें हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और आज बिहार, ये दर्शाता है कि देश की जनता बिल्कुल स्थिर है, सरकार के साथ है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अपनी पीठ थपथपाना चाहता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ जब स्थिरता होती है तो निर्णय लेने की क्षमता होती है, दूर तक सोच के प्लानिंग करने की आपके पास काम करने की सोच होती है। जो सरकारें अस्थिर होती हैं वो 1-2 वर्ष के लिए ही सोचती हैं, मगर जो आज सरकार है वो स्थिर सरकार है और राज्यों में भी सरकार जनादेश मिल रहा है। ये दर्शा रहा है कि हमारी पॉलिसीज लॉन्ग टर्म के लिए है, कोई ये नहीं है कि हम कहा है, मगर भारत जो है वो स्थिर बना हुआ है। जनता का रुझान, जनता की भावनाएं, जनता का समर्थन जब सरकार के पास होता है तभी निर्णय लेने की क्षमता होती है, तभी दूर की सोच रखने की क्षमता होती है, तभी बाहर आगे बढ़ने की क्षमता मिलती है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं शुभकामनाएं देता हूँ आज के लिए। और ये जो हमारा ब्रांड इंडिया है, जो यहाँ की जो प्रदर्शनी लगेगी, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत समय और वर्षों के बाद और एक मजबूत नेतृत्व के बाद ये ब्रांड इंडिया आया है। मैं कहानी भी सुना सकता हूँ छोटी, कि एक बार मैं अभी एक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे सत्य नडेला, वो 2014 में सीईओ बने तो माइक्रोसॉफ्ट का शेयर था $30, मगर 2024 में मैंने कहा आपने तो शेयर प्राइस 430 हो गई आपके 10 वर्ष में। तो बोले हाँ। तो मैंने कहा हमारे प्रधानमंत्री जी की भी 2014 में शुरुआत हुई और 10 वर्ष में उन्होंने भी ब्रांड इंडिया 100 गुना बढ़ा दिया। जैसे आपकी शेयर प्राइस बढ़ी है, भारत की शेयर प्राइस तो नहीं बढ़ी, मगर ब्रांड वैल्यू हमारी बढ़ के आगे आ गई है और इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास तौर से हमारे मीडिया के बंधु जो किसी कारण मुझे विलम्ब हो गया आने में, उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।